فلم کے آغاز میں سمبا شیر بادشاہ سے متعارف کرایا جاتا ہے جو نالا کا شوہر ہے اور اس کی ایک چھوٹی بیٹی کیارا ہے۔ ایک دن سمبا کی بیوی نالا شکار کے لیے نکلتی ہے مگر راستہ بھٹک جاتی ہے۔ وہ گھر واپسی کا راستہ تلاش نہیں کر پاتی اور ایک غار کے نیچے بیٹھ کر اس امید میں انتظار کرتی ہے کہ شاید ایک دن سمبا اسے لینے آ جائے۔ اس کی امید کے مطابق سمبا واقعی سے تلاش کرنے نکل پڑتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کیارا سے کہتا ہے کہ تم باقی سب کے ساتھ رہو اور اپنا خیال رکھو، میں تمہاری ماں کو لے کر آؤں گا۔ کیارا باقی جانوروں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے کہ وہاں رفیقی آ جاتا ہے جو فلم میں اس کے دادا دکھایا گیا ہے۔ کیارا کا دل بہلانے کے لیے وہ کہتا ہے آؤ کیارا میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ایک شیر مفاسا کی ہے جو ابتدا میں ایک آوارہ کے طور پر جانا جاتا تھا لیکن بعد میں بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہی ہے اصل فلم اور یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مفاسا کو اس کے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے شیر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ بنجر زمینوں میں رہتے تھے، کئی سالوں میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے تمام جانور کمزور اور بیمار ہو چکے تھے۔ مفاسا اپنے ماں باپ سے پوچھتا ہے وہ کون سے پہاڑ ہے جن کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ اس جگہ کا نام میلیلے ہے اور ایک دن ہم ضرور وہاں جائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر ہر چیز موجود ہے اور جانور بہت پرامن زندگی گزارتے ہیں۔ ان باتوں کے دوران ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر تمام جانور خوشی سے ناچنے لگتے ہیں مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ خوشی جلد ہی مصیبت میں بدل جائے گی۔ بارش اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے۔ اسی سیلاب میں بہت سے جانور ڈوبنے لگتے ہیں اور مفاسا بھی بہتے پانی میں گر جاتا ہے۔ اس کا باپ اسے بچانے کے لیے پانی میں کود جاتا ہے اور اسی طرح اسے منہ سے پکڑ کر بچا لیتا ہے۔ خود ڈوبنے سے پہلے وہ مفاسا کو ایک طرف پتھروں کی طرف اچھال دیتا ہے جہاں اس کی ماں اسے اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے مگر مفاسا ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ اچانک پانی کے ساتھ ایک ہاتھی بھی آ جاتا ہے۔ ہاتھی کے ٹکرانے سے وہ پل ٹوٹ جاتا ہے جس پہ مفاسا کھڑا ہوتا ہے اور وہ دوبارہ پانی میں بہنے لگتا ہے۔ خوش قسمتی سے اسے پانی میں تیرتی ہوئی ایک لکڑی مل جاتی ہے۔ وہ اس پر چڑھ کر اپنی جان بچا لیتا ہے۔ پانی کا بہاؤ اسے ایک چھوٹے سے تالاب تک لے جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات اپنے جیسے ایک چھوٹے شیر تاکا سے ہوتی ہے۔ تاکا مفاسا کو دیکھ کر خبردار کرتا ہے تمہارے پیچھے بڑے مگرمچھ ہیں۔ یہ سن کر مفاسا ڈر جاتا ہے اور کنارے کی طرف آ جاتا ہے۔ تاکا اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ تالاب سے باہر نکل آئے مگر اب مگرمچھ بہت قریب آ چکے تھے۔ عین وقت پر تاکا کی ماں آ جاتی ہے اور مگرمچھوں کو بھگا دیتی ہے۔ یوں دونوں بچ جاتے ہیں۔ اب تاکا اپنی ماں سے کہتا ہے امی کیا ہم مفاسا کو اپنے گھر لے چلیں مگر اس کی ماں انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کے قبیلے کا اصول تھا کہ وہ کسی آوارہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ مفاسا کہتا ہے میں آوارہ نہیں ہوں، میرے والد اپنے علاقے کے بادشاہ ہیں مگر سیلاب کی وجہ سے میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا ہوں۔ اس کی کہانی سن کر تاکا کی ماں جذباتی ہو جاتی ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتی ہے جہاں تاکا کا باپ بھی موجود تھا مگر مفاسا کو دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہی بات دہراتا ہے کہ ہم کسی آوارہ کو اپنے گروہ میں نہیں رکھتے۔ مفاسا پھر کہتا ہے میں آوارہ نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرے ماں باپ ایک دن مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے اور ویسے بھی میں بہت باصلاحیت ہوں، میں اتنی تیز دوڑ سکتا ہوں کہ تمہیں ریس میں ہرا دوں۔ یہ سن کر بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو تاکا کو ہرا دو، تب ہم تمہیں اپنے گروہ میں رکھ لیں گے۔ ریس شروع ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاکا کی رفتار مفاسا سے کئی زیادہ تیز ہوتی ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے۔ ایک موقع پہ مفاسا غلطی سے پانی میں گر جاتا ہے اور ڈوبنے ہی والا ہوتا ہے مگر عین وقت پہ تاکا اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے۔ ریس دوبارہ شروع ہوتی ہے اور اب بھی تاکا آگے ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو آسانی سے جیت سکتا تھا مگر اسے ایک دوست، ایک بھائی کی ضرورت تھی۔ یہ سوچ کر وہ اپنی رفتار کم کر دیتا ہے اور مفاسا کو جیتنے دیتا ہے۔ تاکا کے باپ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے۔ تاکا ہار گیا مگر تاکا بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے ایک بھائی مل گیا تھا۔ تاہم اس کا باپ اسے خبردار کرتا ہے تاکا ہوشیار ہو جسے تم اپنا بھائی سمجھ رہے ہو وہ تم سے سب کچھ چھین بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ تاکا اور مفاسا ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہنے لگتے ہیں اور جانوروں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بڑے ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہوتا ہے مگر ایک بات غیر معمولی تھی کہ تاکا کا باپ کبھی مفاسا کو اپنے گروہ کا حصہ نہیں مانتا تھا، وہ ہمیشہ اسے آوارہ ہی سمجھتا ہے۔ ایک دن دکھایا جاتا ہے کہ مفاسا تاکا کی ماں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا ہے اور تاکا پیچھے چھپا ہوا ہے۔ شکار شروع ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا
खतरा सामने आ जाता है। सफ़ेद शेर वहां आ पहुंचते हैं जो इनसे कई ज़्यादा ताकतवर होते हैं। देखकर ताका छुप जाता है और इसकी माँ भी ये देख लेती है। जब सफ़ेद शेर इसके इलाके में मौजूद पिंडों पर हमला करते हैं तो ताका की माँ इनके सामने आ जाती है। इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और अपनी माँ को बचाने के लिए मुफासा सफ़ेद शेरों से लड़ पड़ता है और वो अकेला ही दोनों पर भारी पड़ता है। एक शेर को पकड़कर मार देता है। अपने साथी की मौत के बाद दूसरा सफ़ेद शेर कमज़ोर पड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मुफासा अपनी माँ के साथ वापस आता है और ताका की माँ बादशाह को बताती है अगर मुफासा ना होता तो आज मेरी जान ना बचती। मुफासा ने अकेले कितने ताकतवर शेरों से लड़कर मेरी जान बचाई है। ये पहला मौका होता है जब बादशाह मुफासा से नरमी से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, तुमने मेरी बीवी की जान बचाई है। इसी वक्त मुफासा कहता है मुझे पूरी हवा में ये एहसास हो रहा है कि वो शेर हमसे बदला लेने आ रहे हैं। अगर हम चाहे तो वहाँ एक कासिद भेज कर खबर मंगवा सकते हैं। बादशाह के हुक्म पर एक कासिद सफ़ेद शेरों के पास जाता है तो इससे मालूम होता है कि जिस शेर को मुफासा ने मारा था वो इसके बादशाह का बेटा था और अब बदला लेने की आग भड़क चुकी है। बादशाह पहले मुफासा को मारने वाला था मगर जब इसे मालूम होता है कि दूसरे शेर ने इसके बेटे को अकेला छोड़ दिया था तो वो पहले इसी शेर को मार देता है, जिसमें मुफासा के कबीले को अंदाजा हो जाता है कि वो लोग इंतहायत जालिम और ताकतवर है और अब वो बदला लेने ज़रूर आएंगे। कासिद वापस आकर बादशाह को बताता है कि वो शेर बहुत बेरहम और ताकतवर है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे 2 शेर इनके एक शेर के बराबर है और वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, जल्द ही वो यहाँ पहुँच जाएगी। ये सुनकर बादशाह खौफजदा हो जाता है और ताका से कहता है कि अगर तुम अगले बादशाह बनना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हमारा नाम भी मिट जाएगा। सुबह सूरज निकलते ही ताका की माँ ताका और मुफासा को बताती है कि पहाड़ों के बीच यहाँ रोशनी आ रही है, इस जगह का नाम मलेले है, तुम्हें वहाँ जाना होगा और तब तक वहाँ ही रहना होगा जब तक यहाँ का खतरा ख़त्म ना हो जाए, ताकि सही वक्त आने पर तुम अपनी बादशाहत संभाल सको। ताका और मुफासा वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान सफ़ेद शेरों का ग्रोह भी वहाँ पहुँच जाता है और इनका बादशाह ताका के बाप से पूछता है मेरे बेटे को किसने मारा है। ताका का बाप ला इल्मी जाहिर करता है। इससे सफ़ेद शेरों का बादशाह मज़ीद गुस्से में आ जाता है। इधर सफ़ेद शेरों को ये भी पता चल जाता है कि वो 2 शेर यहाँ से भाग चुके हैं, चनाचा वो इनका पीछा शुरू कर देते हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि वो जल्द ही ताका और मुफासा के करीब पहुंच जाते हैं। इन्हें करीब देखकर मुफासा कहता है कि हमें रुककर लड़ना चाहिए, मगर ताका कहता है हम तादाद में कम है इसलिए भागना ही बेहतर है। इसी दौरान सफ़ेद शेर इनके सामने आ जाते हैं और पूछते हैं हमारे नवाब को किसने मारा है। मुफासा बगैर डरे कहता है मैंने मारा है, मगर सफ़ेद शेर इस की बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि इन्हें ताका की खुशबू आ रही होती है। ताका के ज़ख्मों से शाही खून की खुशबू आ रही थी, इसलिए वो समझते हैं कि इसके नवाब को ताका ने मारा है। फासा दोबारा कहता है ताका को छोड़ दो, मेरी गलती है, मगर अब वो ताका के पीछे पड़ चुके थे। ताका और मुफासा भागते हुए एक पहाड़ी के आखिरी किनारे तक पहुंच जाते हैं जहां नीचे सिर्फ पानी होता है। सफ़ेद शेरों के पकड़ने से पहले दोनों पानी में छलांग लगा देते हैं। पानी का बहाव इन्हें एक मैदान तक ले आता है और पानी से बाहर निकलते हैं, मगर रात हो चुकी होती है और वो बहुत भूखे होते हैं। खुराक की तलाश में जंगल की तरफ जाते हैं और किसी की खुशबू महसूस करते हैं। करीब जाकर इन्हें मालूम होता है कि वो एक शेरनी है जिसका नाम सराबी है। इन्हें देखकर वो सुकून का सांस लेती है और बताती है कि सफ़ेद शेरों का खून हर तरफ फैला हुआ है। इन्हें बताती है कि सफ़ेद शेरों का खौफ हर तरफ फैला हुआ है, इन्होंने इसके पूरे गिरोह को मार दिया और वो अकेली बची है। यहाँ हमें एक छोटा सा परिंदा जाजो भी दिखाया जाता है जो सराबी के साथ होता है। ये परिंदा इसके लिए जासूसी का काम करता है, वो ख़तरे की सूरत में इसे खबरदार करता है, यानी एक तरफ से इसका मुहाफिज है। हमें ये भी पता चलता है कि सराबी भी अपनी हिफाजत के लिए मलेले जाना चाहती है, यहाँ जहाँ ताका और मुफासा जाना चाहते हैं। चनाचा वो तीनों इकट्ठे सफ़र जारी रखने का फैसला करते हैं। आगे चलकर इन्हें खुराक की खुशबू आती है जो बंदरों की होती है जिन्हें वो शिकार करते थे। इन्हीं बंदरों में मुफासा की पहली मुलाकात नौजवान रफ़ीकी से होती है। बंदर रफ़ीकी को पसंद नहीं करते थे और इसे अपने गिरोह से निकाल देते हैं। इसी तरह इसकी मुलाकात इन तीनों से होती है। रफ़ीकी को शिकार करने से पहले वो बताता है कि वो मिलाले का रास्ता जानता है। ये सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं। मुफासा इनसे सच पूछता है तो वो कहता है कि वो पहले
वहाँ रहता था और अब लाले जा रहा है क्योंकि इसका भाई वहाँ रहता है। भाई वाली बात झूठ थी मगर वो वाकई रास्ता जानता था। ये जानकर वो इसे मारने का इरादा तर्क कर देते हैं और इसे अपने साथ शामिल कर लेते ताकि वो उन्हें मिलाले तक ले जा सके। सफ़र के दौरान सुबह हो जाती है और रफ़ीकी हवा से महसूस कर लेता है कि सफ़ेद शेर अब भी इनका पीछा कर रहे हैं। शराबी को लगता है कि वो सफ़ेद शेर इनकी नस्ल ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वो आराम करने से मना कर देती है और वो सब अपना सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में ताका मुफासा को बताता है कि इसे शराबी पसंद है और मुफासा इसे शराबी को मुतासिर करने का तरीका बताता है। मुफासा कहता है कि इसने शराबी के जिस्म से गुलाब की खुशबू महसूस की है, जाकर इसे ये बात बताओ। लड़कियों को ऐसी बातें सुनना बहुत पसंद होती हैं। मुफासा के मुताबिक ताका ने भी यही तरीका अपनाया था और शराबी इससे मुतासिर हो गई थी। बहरहाल इसके सामने हाथियों का एक बड़ा लश्कर था और पीछे सफ़ेद शेरों की बड़ी तादाद बहुत करीब आ चुकी थी। सफ़ेद शेर इसलिए भी करीब पहुंच गए थे क्योंकि वो बहुत ऊंची छलांगें लगा सकते थे और एक ही छलांग में पहाड़ अबूर कर लेते थे। वो नीचे की तरफ से आ रहे थे, इसलिए सफ़ेद शेरों से बचने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था। शराबी एक दरख्त पर चढ़ गया और शहद की मक्खियों के छत्ते को तोड़ दिया। ऐसे हर तरफ मक्खियाँ फैल गई और मक्खियों ने हाथियों को बेचैन कर दिया। जब हाथी भागने लगे तो सफ़ेद शेर इन्हीं में उलझ गए। ये लोग सफ़ेद शेरों से बच निकले, लेकिन दिखाया जाता है कि शराबी दरख्त से वापस नहीं आ सकी। वो एक शाख से लटकी हुई थी कि अचानक शाख टूट गई। वो हाथियों के लश्कर में जा गिरी। इससे पहले कि हाथी से कुचल देते मुफासा फ़ौरन आगे बढ़ा और शराबी को एक तरफ धकेला और अपने जिस्म से इसे ढांप लिया। इस तरह इसने इसकी जान बचा ली। हाथियों का लश्कर पहाड़ों की तरफ भाग रहा था कि इसकी तेज़ दौड़ की वजह से पहाड़ों की दीवारें टूटने लगी। वो रास्ता बंद हो गया जहाँ से सफ़ेद शेर इनके करीब आ सकते थे। यूं सफ़ेद शेरों का ख़तरा ख़त्म हो गया मगर शराबी बेहोश हो चुकी थी। रफ़ीकी शराबी के पास आया और इसकी गर्दन दबाकर मालिश की, जिससे इसे होश आ गया। होश में आते ही शराबी ने पूछा, मेरी जान किसने बचाई है? मुफासा ने फ़ौरन झूठ बोलते हुए कहा कि ताका ने तुम्हारी जान बचाई है। वो चाहता था कि शराबी ताका से मुतासिर हो जाए। मुफासा के इस झूठ पर ताका खुद भी हैरान रह गया। शराबी बाहर आई और ताका का शुक्रिया अदा किया मगर रफ़ीकी जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था वो सच जानता था। मुफासा की इज्जत और भी ज़्यादा करने लगा। मुफासा बहुत बहादुर था और इसका दिल बहुत बड़ा था। वो अपने भाई के लिए ढाल की तरह था। वो अपना सफ़र जारी रखते हैं और बर्फ़ानी पहाड़ों के करीब पहुंच जाते हैं। बर्फ़ानी पहाड़ अबूर करने के बाद वो मलाले पहुंच जाते हैं। वो आगे बढ़ रहे थे मगर मसला ये था कि बर्फ़ पर इनके कदमों के निशान बन रहे थे, जिसकी वजह से वो शेर किसी भी वक्त इन्हें तलाश कर सकते थे। तब मुफासा ने शराबी के परिंदे ज़ादों से कहा कि वो इनके कदमों के नीचे से बर्फ़ हटा दे ताकि निशान मिट जाए। मुफासा का मंसूबा बहुत कामयाब रहा। जब सफ़ेद शेर वहाँ पहुँचे तो इन्हें कोई कदमों के निशान नज़र आए। वो उलझन में पड़ गए कि किस समझ जाए। शराबी मुफासा की जहानत से बहुत मुतासिर हुई। इसके अलावा मुफासा के बहादुर फैसलों और कारनामों से शराबी को यकीन हो गया कि दरअसल मुफासा भी ही वो था जिसने इसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। शराबी को ये भी एहसास हो गया कि इसके जिस्म से फूलों की खुशबू ताका ने नहीं बल्कि मुफासा ने महसूस की थी। शराबी मुफासा की तरफ माइल होने लगी। ये सब जानकर मुफासा शराबी को ये समझाने की कोशिश करता रहा कि ये सब काम ताका ने की है। दोनों के दरमियान बहस होने लगी और शराबी चाहती थी कि मुफासा सच कबूल कर ले। ये सब देखकर ताका को शदीद हसद होने लगा। इसने सोचा कि मुफासा से धोखा दे रहा है। इसे अपने बाप की बात याद आ गई कि एक दिन मुफासा तुमसे सब कुछ छीन लेगा। गुस्से में आकर ताका सफ़ेद शेरों के पास चला गया और इनसे कहता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारे बादशाह के बेटे को किसने मारा है? वो मैं नहीं था, वो मुफासा था। मेरे लोगों में शाही खून है मगर तुम्हारे बेटे को मुफासा ने मारा है। वो कहता है कि वो मुफासा को पकड़ने में इसकी मदद करेगा क्योंकि वो मुफासा से बदला लेना चाहता था। ताका सफ़ेद शेरों को बताता है कि वो सब मलाले जा रहे हैं। तुम मेरे कदमों के निशान देकर वहां पहुंच सकते हो और मुफासा को मार सकते हो। अंधेरे में मुफासा को अपने भाई के बचाए हुए जाल का कोई इल्म नहीं होता। ताका रात को वापस आ जाता है और सुबह वो सब अपना सफ़र दोबारा शुरू कर देते हैं। पहाड़ अबूर करने के बाद वो अलक्रम मलाले पहुंच जाते हैं। मुफासा इस जगह को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ से इस जगह के बारे में पूछा करता था और ख्वाहिश रखता था कि एक दिन अपने ख़ानदान के साथ
यहाँ आएगा। मुफासा देखता है कि यहाँ तमाम जानवर अमन से रह रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं होती, मगर इनका ये सुकून इस वक्त बर्बाद हो जाता है जब वो अपने पीछे सफ़ेद शेरों को के बादशाह को देखते हैं। तमाम जानवर सफ़ेद शेरों को बादशाह से खौफज़दा थे, क्योंकि इसने सबको बहुत तंग कर रखा था। मुफासा इस सफ़ेद शेर के बारे में बहुत फ़िक्रमंद था जो इसका पीछा कर रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि इस सब के पीछे इसका अपना भाई ताका है। वक्त ज़ाया किए बगैर सफ़ेद शेरों का बादशाह मुफासा पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई होती है। मुफासा से पीछे धकेल देता है। फिर ताका आगे आकर मुफासा को बताता है कि सफ़ेद शेरों को यहाँ वही लेकर आया है। ये सुनकर मुफासा बहुत दुखी हो जाता है। उसी दौरान सफ़ेद शेर मुफासा को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। ये मुफासा के लिए अच्छा साबित होता है, क्योंकि वो दोबारा पहाड़ पर चढ़ जाता है और तमाम जानवरों से कहता है कि अगर तुमने इसका साथ ना दिया तो एक दिन ये सफ़ेद शेर तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। वो कहता है कि अभी वक्त है, तुम सब कमज़ोर नहीं, अगर हम इकट्ठे हो जाए तो सफ़ेद शेरों से लड़ सकते हैं। ये सुनकर तमाम जानवरों में हिम्मत आ जाती है और वो खुद को ताकतवर समझने लगते हैं, ग्रोह बनाते हैं और मुफासा के साथ मिलकर सफ़ेद शेरों से बदला लेने का फैसला करते हैं। जैसे ही सफ़ेद शेर मुफासा की तरफ बढ़ता है, तमाम जानवर इस पर हमला कर देते हैं। सफ़ेद शेरनियों ने मुफासा पर हमला करके इसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, जहां वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। मुफासा को ज़ख्मी देखकर सफ़ेद शेरों का बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे ख़त्म करने के लिए इसके करीब आया। मुफासा ज़ख्मी था और सफ़ेद शेर ताकतवर, इसलिए मुफासा इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। मुफासा को पिटता देखकर ताका को इस पर तरस आ गया। इसे अपने भाई और इसकी दोस्ती याद आ जाती है, चनाचा वो मुफासा को बचाने के लिए कूद जाता है। ताका सफ़ेद शेर से कहता है कि मुफासा को छोड़ दो, मगर सफ़ेद शेर रहम के मूड में नहीं होता, क्योंकि वो बदला लेने आया होता है। जब सफ़ेद शेर ने दोबारा मुफासा पर हमला किया तो ताका भी ज़ख्मी हो गया। अब मुफासा और ताका दोनों को मिलकर सफ़ेद शेर से लड़ना पड़ता है। इस लड़ाई के दौरान पहाड़ों में शदीद ज़लज़ला आ जाता है। पहाड़ बुरी तरह लरज़ने लगते हैं और वो ज़मीन टूट जाती है जहाँ मुफासा, ताका और सफ़ेद शेर लड़ रहे होते हैं और तीनों पानी में जा गिरते हैं। मुफासा देखता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर इसकी तरफ आ रहा है। वो सफ़ेद शेर को धकेल कर इस पत्थर के नीचे कर देता है। चंद ही लम्हों में वो पत्थर सफ़ेद शेर पर गिर जाता है और वो मर जाता है। मुफासा और ताका अपनी बहादुरी से सफ़ेद शेर को शिकस्त दे देते हैं। अपने बादशाह को मरता देखकर तमाम सफ़ेद शेरनियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। मुफासा की बहादुरी देखकर मलाले के तमाम जानवर मुफासा को अपना नया बादशाह अपना लेते ही जानकर मुफासा बहुत खुश होता है। सब लोग मुफासा की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि अचानक कोई इससे मिलने आता है। वो मुफासा की माँ होती है। वो बड़े हो चुके मुफासा को पहचान नहीं पाती, मगर इसका नाम सुनकर इसे पहचान लेती है। दोनों बहुत खुश और जज्बाती हो जाते हैं। मुफासा को ये भी मालूम होता है कि इसके वालिद मारे जा चुके हैं। अपनी माँ से मिलने के बाद ताका मुफासा के पास आता है। जब ताका मुफासा से माफ़ी मांग रहा होता है तो तमाम जानवर शोर मचाने लगता है कि इसे माफ़ मत करो, ये गद्दार है, इसी ने सफ़ेद शेरों को तो यहाँ बुलाया था, ये वारा हमारे साथ नहीं रह सकता। मुफासा सबको डांट देता है और कहता है ये मेरा हुक्म है कि ताका यहाँ रहेगा, मेरा भाई है, ताका मेरे साथ रहेगा जब तक मेरी हुकूमत कायम है। मुफासा की इस अजीम दिलदारी को देखकर ताका को और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। मुफासा से कहता है कि वो इसे दोबारा याद ना करे और पहाड़ों की तरफ चला जाता है। यूँ मुफासा की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है जो रफ़ीकी कियारा को सुना रहा था। कहानी ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि कियारा के वालिद इसकी मां को लेकर वापस आ जाते हैं। कियारा को पता चलता है कि अब इसका भाई भी है और इसे देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। कहानी का ख़त्म सबके खुश और इकट्ठा होने पर होता है।